check whether the following number is perfect square or not, perfect square or not, by the method of repeated subtraction. Right? Perfect square है कि नहीं वो निकाल सकते हैं. Number is 64. So what we do, वहां से one by one हम क्या करेंगे, odd numbers minus करेंगे, ठीक है? तो शुरू करेंगे, चलो 64 minus 1, जो भी आंसर आया odd number 3, 5, 7, 9 करते रहो, चलो 64 minus 1, 63, same 63 नीचे आया minus 3, 60 करो ऐसा, चलो देखते हैं. Odd numbers minus करते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30, right? इस तरह माइनस करते रहेंगे. चलो 60 minus 5 is 55. 55 minus 7, right? 48. 48 minus 9. आगे therefore सिंबल लगाते हैं. 39 minus 11. 28. 28 minus 30. Right? 5, 7, 9, 11, 13. 13 के बाद आएगा 15. So bring 15 minus 15. Answer आ गया 0. Got it? So here we have got 0 answer. 0 आया है. इसका मतलब क्या हुआ? This number 64 is perfect square. Right? Subtraction के बाद आया. So we can say that for 64 is a perfect square, right? इस तरह निकलेगा. किसका स्क्वायर है तो याद होगा आपको. So 64 किसका है तो we write it as 8 square. So यहां तक हमने किया लास्ट टाइम. Right? Now, certain squares are given. We will decide whether they can be perfect square or not. Right? देख लो, अभी लिखना नहीं, notebook बंद रखना. Again, remember the previous concept. Right? Square हमने किया था 1 to 10 का. These are the numbers. इनका हम स्क्वायर करेंगे. 1 square is 1. This is 4, 9, 16, 25, right? 36, 49, 8 square, 64, 9 square, 81, 10 square is 100. Correct? Now in the sequence, remember, बीच में जो नंबर है, middle number 5,
उसका स्क्वायर करेंगे, वी हैव डिफरेंट मेथड। लास्ट नंबर इज 10, उसका स्क्वायर करेंगे, जितने जीरो है उससे डबल जीरो हो जाएंगे। Suppose there is 1 0, when we do the square, it will have 2 zeros, right? 2 0 है तो डबल हो जाएंगे 4, 5 zeros है तो डबल हो जाएंगे 10, correct? This way we get number of zeros. 5 का स्क्वायर की टेक्निक बताता हूं मैं बाद में। बाकी जो नंबर है उनका हमने लास्ट डिजिट टैली किया था, करेक्ट? Last digit in the sequence, all right? Last digit here in the sequence is this. याद है नंबर 1496, यहां से भी ऊपर जाएंगे, नंबर is 1496. Means if the last digit of any number is either 1, 4, 5, 6, 9 and 0, then it can be a perfect square. वो कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर हो सकता, होगा ही वो जरूरी नहीं है, करेक्ट? क्योंकि अगर 8 का स्क्वायर देखें तो वो होगा 64, लास्ट नंबर 4। अब 64 के आगे इसी तरह सपोज वी हैव 74 नंबर ends with 4, but 74 किसी का रूट नहीं है, correct? So remember the thing, if the answer or the last digit is 1, 4, 5, 6, 9 and 0, then it can be a square, right? उसका रूट निकलेगा, ठीक है? वो नंबर का रूट हो सकता। अब देखो प्रैक्टिस वर्क में कुछ सम्स दिए हैं, open your practice work. Exercise 6.4, page number 58, main question 4. Right? Based on last digit, we will decide number. ठीक है, ये भी मैंने आपको याद करा दिया है टेक्निक से 1, अंपायर से 4, 5, 6, 9, 0. Now see the first one. First number is 15225. Correct? Last number is in this category, means it can be a square. हो सकता, surely square होगा ही वो नहीं कह सकते. Next number 26892. 26892. Last number is 2. 2 ये कैटेगरी में है ही नहीं, मतलब 26892 हमारे काम का ही नहीं है, right? It is not a perfect square at all. 46933. 46933. Last number is 3. अब ये लिस्ट में 3 नहीं है, it cannot be a perfect square. Alright? Suppose a number is 589371. Last digit is 1. 1 ये कैटेगरी में है, तो मतलब ये हो सकता है, correct? So this way we will decide whether the number can be perfect square or not. Got it? याद रहेगा, मेन क्वेश्चन 4 के लिए आपको करना है वो, ठीक है? ऑलरेडी बताया है पहले, बट और एक बार यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लास्ट नंबर शुड बी 1, 4, 5, 6, 9 और 0, इतना है तो वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। Okay, now we will see how to do square of number ending with 5. कोई भी नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर है, ये भी काम कर लेंगे। Square of number ending with 5, right? Suppose we have number 15, right? उसका स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट we will divide number in 2 parts.
पहले तो हम ये करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बना 25। अब आगे जो नंबर है 1, इसके बाद नंबर आता है 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 into 2 is 2, ये 2 इसके आगे लगा दो, सो आंसर कम्स 225। गॉट इट? डायरेक्ट टेक्निक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों में काम की है। वंस अगेन कहां यूज करेंगे? स्क्वायर निकालना है बट पीछे 5 ही होना चाहिए। हाँ, खुश होके ये नहीं सोचना का ये तो सब नंबर का हो जाएगा, सबका नहीं होगा, पीछे 5 है उसमें ही करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ। 15 स्क्वायर क्या किया, पीछे 5 है उसका स्क्वायर करो 25, पहला नंबर है 1, 1 के बाद आता है 2, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन वो आगे लगा दो, राइट? फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू 35 का स्क्वायर, ठीक है? सो लास्ट नंबर पीछे 5 है, 5 का स्क्वायर यहां बना वो है 25, करेक्ट? आगे का नंबर है 3, 3 के बाद आता है 4, 3 into 4 बना 12, 12 इसके आगे लिख दो, तो नंबर बना 1225। Got it? So 35 square 1225, right? 1225. Clear? Same way, suppose 55 का स्क्वायर लेना है, तो पहला नंबर है 5, 5 के बाद आता है 6, 5 into 6 बना 30, ठीक है? वो 30 और पीछे 5 का स्क्वायर लिख दो, 5 स्क्वायर 25। Got it? So the number becomes 3025, ठीक है? लिखो पहले, चलो मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सब शॉर्ट टेक्निक्स आगे काम आएगी। Write down heading square of number ending with 5, square of number ending with 5. Right? साथ में ही करते हैं, चलो। We will begin with 35 का square. Right? ये जरूरत नहीं है। Write down 35 square. Right? So पहले क्या करो, 3 को ऐसे एरो करके नीचे ले लो 3, next number is 4, 3 into 4 बना 12। अब ये जो 5 का स्क्वायर है वो इसके पीछे लगा दो, 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है? सेम वे 45 का स्क्वायर, राइट? तो पहले 4 ले लो नीचे, 4 के बाद आता है 5, 4 into 5 is 20, पीछे लगाओ 5 का स्क्वायर वो बना 25, ठीक है ना? हो जाएगा 35, 45, सेम वे करो, चलो 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, राइट? 65, 75, 85, 95 तक करो। $85 square, 95 square, राइट? इसके बड़े नंबर का भी होगा, राइट? कर दो अच्छी तरह।
काउंट करेगा? सारा माइक काउंट करो। एक शायद यहां से बंद होगा। लेट मी चेक। यस, सारा माइक काउंट करो। नहीं, नियति माइक काउंट करो। चल बोली है फटाफट, बताना आंसर, बाकी सब चेक कर, बोल दे। आयशा बोल दे। क्यों ऐसा? सामने है, दिख रही है, हिल रही है, माइक क्यों ऑन नहीं होता? अच्छा, ये लोचो से सॉरी, तो सारा का इसीलिए नहीं हुआ। चल नहीं है। यस सर। सारा सारा माइक ऑन करो। सारा का माइक नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, चल नहीं है, बता आंसर बोली दे पड़ा। यस सर। 55 3025 65 4 225 75 8 5 6 25 85 7225 95 9025। करेक्ट, ठीक है। So these are the ways by which we can get square of number ending with 5. ठीक है। Now we will go towards next method of finding square root, prime factorization. But इसके पहले कुछ fundamentals देख लेते हैं, ठीक है। Divisibility test वो देख लेते हैं, and our fundamentals. Fundamentals, right? Divisibility of 2, write down. डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मतलब कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल है वो लिखो, राइट? लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट आया होगा 4th में, बट काम का है। लास्ट डिजिट इज 2 4 6 8 0। कोई भी नंबर में ये लास्ट डिजिट है पीछे, then only it is divisible by 2. Write down number 2. Divisibility of 5. लिख दो last digit 0 और 5. Number 3. Divisibility of 10. Last digit is 0. Correct. 2 4 6 8 0. Last digit 0 or 5 divisible by 5. Last digit 0, then it is divisible by 10. Right. जो ज्यादा आएगी बार बार वही लिखते हैं। Next, divisibility of 3. Right. कोई भी नंबर 3 से divisible कब है? Right. If sum is divisible, लिखते हैं ना, if sum is divisible by 3, then number is divisible. If sum is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Correct? कैसे? देखो, for example, a number is given 228. हमें देखना है उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, तो क्या करेंगे?
2 plus 2 plus 8 तीनों नंबर्स का एडिशन करेंगे. So 2 plus 2 plus 8 addition is 12. अब 12 3 के टेबल में आ जाता है. 12 हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 12 divided by 3 is 4. मतलब अगर 12 हो गया, that means this number is divisible. Correct. Once again, we will find sum of the digits. नंबर में जितने भी जो डिजिट्स है उनका एडिशन करेंगे. अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर डिवाइड हो जाएगा. करेक्ट. Another example, 13982. We want to check अगर डिविजिबल है कि नहीं. कर दो चलो. Add the digits. 9 plus 8 plus 2. Addition is 23. 23 3 के टेबल में नहीं आएगा ना. 23 is not divisible, right? So 23 is not divisible by 3. So 23 divisible नहीं है. That means this number ये भी not divisible. ठीक है. एडिशन नहीं हुआ तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा. Alright, so remember all these fundamentals. We will use these fundas in prime factorization method. ठीक है, चलो. Now pay attention here. We have write down heading prime factorization method. Method लिखो आगे. To find square root of a number. To find square root of a number. कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है. We will use prime factorization. Correct. देख लेना. For example, number is 1764. 1764. उसके हमें प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट निकालना. राइट. लिखना नहीं, समझ लेना परफेक्टली. Prime factorization means we will begin with prime numbers. Or in the list of prime number, सबसे पहले आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are the prime numbers, right? Means we will begin division with 2. 2 से नहीं चला तो 3 से करेंगे. 3 से नहीं चला तो 5 से करेंगे, right? Now we will divide it by 2, and the last digit is 4. It is divisible by 2. 70 तक जाना है तो 2 8s are 16. This number is 70. एक नंबर दिमाग में रखो. 16 एक का डिफरेंस है 1. So 1 and 6 16. Again 2 8s are 16, and 4 2 2s are 4. Got it? Direct division करना है ऐसा. Once again 2 8s are 16. Difference is 17 1. 1 and 6 16. Again 2 8s are 16. 4 2 2s are 4. Now अगर एक बार डिवाइड हुआ तो वो कम से कम 2 बार तो चलेगा. Square है इसलिए. So again the same number is divisible by 2. 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2. Now last digit is 1, means it is not divisible by 2. Check करते हैं 3. Correct. 2 का हो गया काम और 3 का काम आया. कैसे होगा?
addition should be divisible, so let's check. 4 plus 4 8 और 1 9 आता है ना 9 3 के टेबल में. So this number 441 is divisible by 3. So now we begin 3 1s are 3, difference है 1 and 4 है तो 1 1 and 4 14, 3 4s are 12, 12 से 14, difference of 2, 2 and 1 21, 3 7s are 21. Right? Again we divided by 3 क्योंकि दो बार तो चले गए हमें पता है. 3 4s are 12 and 14, 2 and 7 27, 3 9s are 27. Now 49, right? 49 chalega, we know it is square of 7. 7 7s are 49, 7 1s are 7. Got it? So these are all what? Prime factors, correct? 2 से चला, 3 से चला, 7 से चला, right? पहले ये check करेंगे 2 नहीं तो 3 नहीं तो 5 नहीं तो 7. Now we write all the numbers. Right? देखिए ये भी मैं कर देता हूँ. So now this number. So now we have therefore 1764 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. समझ रहे ना? Because आगे क्यूब का चैप्टर है, we will use same method. क्यूब में भी चलेगी. लिख दिया. Now we want to find square root. So now मैं put symbol काम करता हूँ. ये निकाल देता हूँ. Right? Now square root of 1 एक मिनट. अब पहले उसकी पैर बना देते हैं. Therefore 1764. Right? 2 is 2 times 2 times 2 times. So it is written as 2 square into 3 square into 7 square. 1764, 2 square, 3 square, 7 square. Now we get therefore square root of 1764. Correct? यह नॉर्मल था तो हमने लिखा स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट आएगा तो क्या होगा? ऊपर की चोटी कट हो जाएगी, है ना? तो तीनों नंबर के ऊपर जो चोटली है ना, त्रणेय ने चोटलियों कापी नाखवानी. So क्या बना? This is simply 2, चोटी कट गई तो 3, ये भी काट दिया वो बना 7. Got it? So now we write it as therefore square root of 1764 equal to 2 into 3 6 into 7 42. ये बना आंसर. Got it? This is what prime factorization method. Right? Prime number में और एक बार यहाँ लिख देता हूँ. Primes are 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90, 23, 29 ये सब आएंगे प्राइम नंबर है. मतलब कोई भी टेबल में नहीं आए ऐसे नंबर तो ये नंबर से ही डिवाइड करना. बट ज्यादातर सम्स यहाँ तक हो जाएगा 11 या 30, ना चाहे तो 30 ना तो 30. राइट? और फिर भी आपने अगर स्क्वायर से याद किए हैं तो अंदर आएगा कोई ना कोई स्क्वायर पता चलेगा. लाइक 49 आया तो तुरंत पता चलेगा कि 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 से ही डिवाइड होना चाहिए. ऑलराइट? वंस अगेन remember prime factorization method. These are the primes. We'll check the division one by one. Here is the number 1764. 2 से divide हुआ, 3 से, 7 से. So we write numbers like this. Underline करना है. 2 बार आया means 2 square, 3 square, 7 square. और फिर square root लिखेंगे. तो याद रखो जहां जैसे ही square root आया, ये shade आया, तीनों की चोटी काटनी है. क्यों? स्टूडेंट कई बार यहाँ स्क्वायर रूट भी लिखते हैं, ऊपर चोटली भी लिखते हैं. तो स्क्वायर रूट અને ચોટલી બે ભેગા હોવા જોઈએ नहीं. क्लियर? स्क्वायर रूट और ये बना आंसर. कर दो चलो. राइट? सलोनी गिव द स्टेप. 9604 2 से डिवाइड किया क्या है बोलो? Yes sir. 484802.
Okay, again we divide by 2. 2401, correct. Now 4 and 2 6 and 1 7, ये तो 7 है, मतलब it is not divisible by 3. 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 10 से नहीं है. Now you have only one option, उसको 7 से डिवाइड करके देखो, है ना? Prime numbers list है 2 3 7 11 13 17 19. तो 2 से नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3. 5 से नहीं है, चेक करो 7 से होता है कि नहीं. नहीं है तो 11, नहीं है तो 13. बॉक्स हो गया, बोलो नेक्स्ट स्टेप. बॉक्स क्या हुआ? 7 जा 343. ओके, अगेन 749. 7 से एक बार चला तो और भी 7 से चलेगा. 7 अब आया 49 चलेगा. 7 7 जा 7 1 जा. 1 जा. ठीक है, very good, right? So now we write this number 9604 as 2 2 7 7 7 7, right? Now we will make pairs. Underline कर देंगे 2 2 2. 9604 2 into 2 is 2 square. 7 into 7 is 7 square. 7 into 7 is 7 square. ठीक है? Now we find square root of 9604. जैसे square root आया, तीनों की चोटी गई. So it is 2 into 7 into 7. Answer is 98. Check कर लो. यही खास काम के सबसे है. Right, next. Five, 6, 2, 5. करो. आ गया आंसर? किसी का आंसर अगर आया है तो अंदर हैंड रेज का ऑप्शन है, जूम में यूज करो. चलो, प्रेमल और रुशिल. रुशिल आंसर बोलो.
था 75। ओके, फैक्टर बोलो क्या क्या है वो। 5 1 1 5 2 into 5 फिर in 5 into 5 हाउ मेनी टाइम्स 5 वो बोल दें। 4 बार सर। ओके, देन 3 into 3 3 पहले नहीं आएगा, पहले 3 से डिवाइड करना है ना। 5 6 2 5 राइट, अंडरलाइन कर दो। 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर राइट। जनरली 3 से ही डिवाइड करते हैं, बट इन केस आपको पता चला 5 से है तो कर दिया, बाद में 3 करो तो भी चलेगा। नाउ वी राइट दिस 5 6 2 5 is 5 into 5 into 3 that comes 75। चेक कर लो, फैक्टराइजेशन के बाद ये आएगा। Correct? 5 6 2 5 5 into 5 into 3 75। Now one more thing, मैंने आपको शुरू में टेक्निक बताई, तो क्यों टेक्निक से भी पता नहीं चला आपको? इसलिए तो मैंने बताई थी। हाँ, करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, बट अगर पीछे 25 है, वी कैन राइट डायरेक्टली द आंसर। देखो 56 25 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 56 can be thought about product of two numbers, right? 56 मतलब 7 into 8, दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन, उसमें से पहला नंबर लिया 7 और 25 से बना दिया 5। ठीक है, तो आंसर बन जाता है 75। सम करने से पहले आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि यही आंसर आएगा, राइट? तभी काम का है स्क्वायर स्क्वायर रूट, अदरवाइज मतलब ही नहीं है। वंस अगेन आगे पीछे 5 है तो स्क्वायर की मैंने टेक्निक बताई, बस वही यूज करते हैं। 56 तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आते हैं ऐसे नंबर। 7 into 8 पहला नंबर लिया 7 और पीछे 25 का स्क्वायर रूट 5, तो आंसर इज 75। ठीक है, आगे और बताऊंगा टेक्निक्स, सीख लेना टेक्निक, बट आपके टीचर को भी परेशान नहीं करना। प्रॉब्लम हो जाता है, टीचर को पता नहीं होता टेक्निक से, आप फिर टीचर को परेशान करेंगे। चलो नेक्स्ट वन, सी 82.81, ये है क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, राइट? इफ डेसिमल इज देयर, समझ लो क्या करेंगे। वी राइट इट इन फ्रैक्शन 8281 अपॉन 100। बस अब दोनों के स्क्वायर रूट निकालेंगे अलग अलग से। सो नाउ न्यूमरेटर 8281 के फैक्टर्स निकालेंगे, डिनोमिनेटर इज 100, सो नाउ वी गेट 5 फैक्टर्स ऑफ 100, राइट? कर दो चलो 8281 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है। 8281 7 1s are 7 and single digit चलेगा। 8 12 again 7 1s are 7 5 58 7 7s are 49 नहीं 7 7
Right, 7 ones are 7 and 8, 1, 12, 7 ones are 7, 12, 5, 58. 7 eights are 56 or 58, 2 and 1, 21, 7 threes are 21. Again, we divide it by 7. 7 ones are 7, 4, 48. 7 6 are 42 or 48, 6, 63, 63, right? अब 169 आया देखो. Now you know 169 means square of 13. So चलेगा 13 into 13, 13 ones are. Right? This way, factors of 100 we begin with 2, 50, again 2, 25, 5 5s are 25, 5 ones are 5. Correct? So these are the factors. Now what we do, we write number, right? Number हम लिखेंगे, देखो, again, 8, 2, 8, 1 upon 100 is equal to 80 to 81 हम लिखेंगे 7 into 7 into 13 into 13. Deno is 100. 100 is written as 2 into 2 into 5 into 5. Right? One additional step. Next step, therefore, 8 to 81 upon 100 is written as 7 into 7 means 7 square. 13 into 13 is 13 square. नीचे 2 square into 5 square. Right? अब आएगा square root का symbol. So now square root of 8281 upon 100. Square root आया तो ऊपर की छोटी कट हो जाएगी. So it is 7 into 30. Deno 2 into 5. Right? 7 into 30 is 91 upon 10. And then we cut decimal 9.1. Right? यहाँ पे भी डेसिमल बना देंगे, right? Under root. This is 82.81 as 9.1. Right? So only one change, that is write number denote both. Fraction upon 100, so 82.81, 91 upon 10, तो वो बनेगा 9.1. हो जाएगा ऐसे सम्स, थोड़े बहुत देता हूँ ऊपर. See, practice work को कौन से सम्स में दे रहा हूँ वो देख लो पहले. Practice work page number 61. Exercise 6.3. Practice work page number 61. Exercise 6.3. Right? इसमें example number 1. समझो क्या है example 1? Find square root by prime factorization method. इसमें आप करेंगे sums. Seven to 16. ठीक है, सभी आगे वाले तो आपको याद होंगे. 7 से लेके 16 तक. After that, page number 63. Exercise 6.4. Example number 2. सीधा हेडिंग क्या है example number 2?
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मैंने सिखाई नहीं है, समझो। आप नंबर यही यूज करेंगे, बट यू विल फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो लिखो वहां पे एग्जांपल 2 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब ये मेथड यूज करेंगे, राइट? एंड देयर आर सम्स 1 to 10, सो याद रखो, कोई कल ये नहीं बोलेगा सर डाउट था, क्योंकि डिवीजन मेथड आपने सिखाई नहीं है, डिवीजन नहीं कहा है, नंबर वही यूज करो, बट यू हैव टू डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? और जो होमवर्क हो जाए इसके बाद आंसर्स टैली कर लेना, आंसर्स जो है वो नीचे से टैली कर लेना, राइट या रॉन्ग आपको पता चले, ठीक है? डाउटफुल है वो देख लेंगे यहाँ, बराबर? बनन? क्लियर? ओके। मीट चौहान, क्लियर एवरीथिंग? सर कंटिन्यूअस मेथड यूज करवाने, क्या हुआ? कंटिन्यूअस मेथड यूज करवाने। हाँ, कंटिन्यूअस नंबर आएगा जैसे होमवर्क। अब हर रोज आपको कंटिन्यूअस नंबर लिखना है होमवर्क में, ठीक है? ओके सर। सो जय हिंद कर लेते हैं फिर, ओके? बाय सर, जय हिंद। बाय बाय। बाय सर। बाय सर, जय हिंद।